એસપીસીસી ચેપ્ટર નંબર 3નું ક્વિક રિવિઝન છે ભાઈ. ચેપ્ટર 3નું ક્વિક રિવિઝન છે. ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ કંપની કયા કયા મેજર ક્વેશ્ચન્સ છે એ આવી શકે. તો એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ કંપની. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ કંપની. એમાં ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોર્પોરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ. સેકન્ડ વન છે લિમિટેડ લાયબિલિટી ઓફ કંપનીઝ મેમ્બર. થર્ડ વન છે પરપેચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ. ફોર્થ વન સેપરેટ પ્રોપર્ટી. ફિફ્થ વન ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર્સ. સિક્સ્થ વન કેપેસિટી ઓફ કંપની ટુ સ્યુ એન્ડ બી સ્યુડ, એટલે કે કંપની ઉપર કોઈ પણ કેસ કરી શકશે અથવા તો કંપની બીજા ઉપર છે એ પણ કેસ કરી શકશે. પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ અને 8 પોઈન્ટ છે ફાઇનાન્સીસ. વન્સ અગેન આપણે એક ક્વેશ્ચન છે રિવાઇઝ કરી લે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ કંપની. યુ હેવ ટુ રિવાઇઝ 4 to 5 ટાઈમ્સ એટલીસ્ટ 4 to 5 ટાઈમ્સ તમારે ખાલી છે ને વિડીયો સાંભળવાનો છે. સાંભળશો ને તો પણ છે ને મસ્ત મજાનું તમને યાદ રહી જશે, રાઈટ. ફર્સ્ટ વન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોર્પોરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોર્પોરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ. કંપનીનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ કેવું છે બેટા? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. કેવું છે બેટા? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. સેકન્ડ વન લિમિટેડ લાયબિલિટી ઓફ કંપનીઝ મેમ્બર્સ. લિમિટેડ લાયબિલિટીઝ ઓફ કંપનીઝ મેમ્બર. થર્ડ વન પરપેચ્યુઅલ, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. ફોર્થ વન સેપરેટ પ્રોપર્ટી. ફિફ્થ વન ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર્સ. સિક્સ્થ વન કેપેસિટી ઓફ કંપની ટુ સ્યુ એન્ડ બી સ્યુડ. સેવન્થ વન પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ. અને 8 વન છે ફાઇનાન્સીસ, રાઈટ. યાદ રહી ગયું. ક્વેશ્ચન નંબર 2 ઉપર જમ્પ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 2 પ્રોસિજર ફોર ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ કંપની. પ્રોસિજર ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ કંપની. એમાં ટોટલ 2 ક્વેશ્ચન્સ બની શકે બેટા. યા તો તમને પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન પૂછે તો પણ તમારે લખવાનું, યા તો એમ કે પ્રાઇમરી સ્ટેજ શું છે તો પણ એ લખવાનું, યા તો એમ કે પ્રમોશનલ સ્ટેજ અથવા તો પ્રિલિમિનરી સ્ટેજ અથવા તો કે ફર્સ્ટ સ્ટેજ. બધામાં તમારે એક જ આન્સર છે લખવાનો રહેશે, રાઈટ. એક જ આન્સર છે લખવાનો. આઈડિયા ફોર પ્રમોશન ઓફ અ કંપની. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ the idea for promotion of a company. Idea, what an idea Sarji, the idea for promotion of a company. Second point, primary investigation. Second point, what is beta? Primary investigation. Third point, extensive investigation. डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे. क्या करेंगे बेटा? डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे. फिर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, अपने पास जो भी रिसोर्सेज है उसको हम मोबिलाइज करेंगे. क्या करेंगे बेटा? मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज. एंड लास्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस. पैसा तो चाहिए ही होगा, पैसे के बिना कुछ भी बात बनेगी नहीं मेरे दोस्त. तो बने क्या कहेंगे लास्ट पॉइंट में? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस. फर्स्ट once again question number 2 प्री इनकॉर्पोरेशन और प्राइमरी स्टेज और प्रमोशनल स्टेज और प्रिलिमिनरी स्टेज बोले या प्रमोशनल स्टेज बोले या प्राइमरी स्टेज बोले, जो भी बोले आंसर क्या लिखना है बेटा? द आइडिया फॉर प्रमोशन ऑफ कंपनी और बिजनेस. द आइडिया फॉर प्रमोशन ऑफ कंपनी और बिजनेस. सेकंड पॉइंट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. थर्ड पॉइंट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन. फोर्थ पॉइंट मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड फिफ्थ पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है जल्दी से. प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. फर्स्ट स्टेज खत्म कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 इनकॉर्पोरेशन स्टेज बोले या ऐसा बोले कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब हमको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करनी है तभी. तो ये सारे पॉइंट्स है वो लिखने हैं एग्जाम में आपको. कौन कौन से मोटे स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमको क्या क्या करना. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा लगे. और कोई भी चैप्टर चाहे, कोई भी सब्जेक्ट के चैप्टर चाहे, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है. चलो चलते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दूसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेसिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी बोलेंगे. याद है डन सर, हो गया. थर्ड पॉइंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर. कौन कौन डायरेक्टर है हो गए उसकी भी जरूरत पड़ेगी. फिर से 3 पॉइंट बोलो मेरे साथ. पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. फोर्थ पॉइंट रिटर्न कंसेंट लगेगा बेटा. क्या लगेगा? रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स. रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स. फिफ्थ डिक्लेरेशन. क्या लगेगा बेटा? डिक्लेरेशन. सिक्स पॉइंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी. जो अगर कोई भी फॉर्म में क्या है बेटा? अपना डिस्क्लोजर है, अपना इंटरेस्ट है, अपना क्या है इंटरेस्ट है, तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेटा? डायरेक्टर्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो ये बात थी डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
then written consent and affidavit of directors, declaration, then disclosure of interest in other firm, disclosure of interest in other firm or company. ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। एक लास्ट छोटू सा क्वेश्चन रह गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें आपको मोस्ट टाइम पे ये कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये रहा पूरा का पूरा आपका चैप्टर, ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चार्ट का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर दो, तो मैं PDF भी लाइक हेलो रख दो तो मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा सॉरी, वीडियो अच्छा लगा भाई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से बेटा मेरे को क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है। क्या बेटा, मोटिवेशन मिलता है ना। तो एक लाइक कर देना और फिर से मिलेंगे हम नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। डन।